Good morning everyone. Welcome to this video. Student, again today we are continuing with the chapter 8, that is simple machine. Okay. So we already learned with the term force. Force is a push or a pull on an object. Okay. And I already given you some application of the force also, like what happened when force is applied on an object can move, and a stationary object can move, and moving object can stop, it can move faster, and it can change the direction of the object, of a moving object, right? And it can change the shape also. I also given you a practical of these in a previous video. Okay, so types of forces we learned about it: gravitational force, electrostatic force, magnetic force, and frictional force. Okay, we learned about the gravitational force. The force of gravity of the earth is called gravitational force. Every object on the earth is attracted with the central force of the earth, that is called gravitational force. I shown you the example also. Every object that thrown up comes down. Okay, like falling apple always fall down, not goes up. Okay. Electrostatic force, we learned about it is known as the heavier material, heavily charged material will always attract the lighter material. I just shown you an example of scale and paper bits. Okay, I given you a practical of that also. We learned about the magnetic force, and student, some of you made so much, it means a very good video of that particular magnetic force. Even the topics that is not in our syllabus also you mentioned in that also. One of the student is there जिसने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में भी आपका वीडियो में समझाया. दिस इज़ वेरी गुड, आपने इतना एफर्ट किया. आई वॉन्ट दिस इज़ योर एक्टिविटी बेटा. आई वॉन्ट टू टेल यू, इसके बेस पे आपको जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट के मार्क्स हैं वो इसी के बेस पे मिलेंगे. तो मैं एक्टिविटीज़ आपको देती रहूँगी, उन्हीं एक्टिविटीज़ के बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो वेरी गुड. दोज हु हैव डन, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें भी ये कंप्लीट करना है, बिकॉज दिस इज मार्क्स बेस्ड activity. Okay. Next we learned about the frictional force. Frictional force is the force between the two object or between the two surface, right? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे. लाइक हम जो चल पाते हैं, हमारा जो मूवमेंट है ग्राउंड में, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ही पॉसिबल हो पाता है. अगर आप लेकिन फ्रिक्शन की वजह से मशीन्स जो होती हैं वो आपस में, उनके जो पार्ट्स हैं वो आपस में टकरा के डैमेज भी हो सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. ओके, एडवांटेज ऑल्सो देयर एंड डिसएडवांटेज इज ऑल्सो देयर. एनर्जी, we learned we are bind up in previous video with the term energy. Energy is the ability to do work. Energy क्या है? वो ability है आपकी जिससे आप काम करते हैं, right? We need energy to make the matter move. हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? ताकि कोई भी मैटर को हम मूव कर सकें, या फिर उसको मतलब हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट क्यों होती है एनर्जी की? ताकि हम क्या कर सके, काम कर सके. समटाइम इट कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. किसी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए भी एनर्जी का यूज होता है. स्टूडेंट, वी लर्न इट इन अ स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? हमने मैटर मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ये पढ़ा था, राइट? कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एनर्जी का यूज़ करते हैं. लाइक हीट एनर्जी का, अगर मुझे आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको टेम्परेचर देना होगा, हीट देनी होगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? एंड इफ आई वांट टू चेंज liquid from the liquid to water vapor, so I need a heat energy to convert it into another form. So this is how you can change one form of energy to another form of energy. Okay, so there are the various forms of energy like mechanical energy, heat energy, light energy,
sound energy, electrical, wind energy, solar energy and water energy. So student, I will give you some questions based on this video. So you have to do by these with the help of these slides and it's very easy. मैं आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन देती हूँ जो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सके, जिनके आंसर्स आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. लाइक मैं आपको अगर क्वेश्चन देती हूँ राइट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो क्या आप इनको इजीली नहीं लिख सकते? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर 1 मैकेनिकल, सेकंड हीट एनर्जी, थर्ड लाइट एनर्जी, फोर्थ साउंड एनर्जी, फिफ्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिक्स्थ विंड एनर्जी, 7 सोलर एनर्जी एंड 8 वाटर एनर्जी. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर वर्क. नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट द मैकेनिकल energy. Okay, what is mechanical energy? It is the energy possessed by a body because of its motion. अपने मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी बॉडी में, राइट, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. ओके, it is a mechanical energy is divided into two parts. One is kinetic energy, one is potential energy. Kinetic energy is just because of the movement. आप जब भाग रहे, राइट, और आगे से कोई पर्सन आपसे टकराता है तो आपके टकराने से जो उसको इफेक्ट पड़ेगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मूवमेंट के कारण जो आपके अंदर एनर्जी जो जनरेट हुई है उसके कारण वो इफेक्ट पड़ेगा, राइट. एंड ड्यू टू पोजिशन इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन आप जैसे किसी हाइट पे है, मतलब एक पत्थर है काफ़ी ऊपर से आप नीचे गिराते हैं तो वो जितनी स्पीड से जाएगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसकी हाइट के कारण जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. तो स्टोर्ड फॉर्म में जो एनर्जी होती है दैट इज ड्यू टू इट्स पोजिशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बॉल इज एट हाइट इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी. जब कोई बॉल कोई हाइट में है, बहुत बड़ी हाइट में है, तो उसके अंदर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है. और व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम द हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी, राइट. जब वो क्या होगी? उस हाइट से गिरना शुरू होगी, व्हेन इट विल फॉल डाउन देन the potential energy will convert into kinetic energy. Okay student, so you learned about it. What is mechanical energy? Now this is the heat energy. Okay, so स्टूडेंट, हीट एनर्जी की हेल्प से आप अपने घर में देखते होंगे खाना पकता है, राइट. आपके जो इंजन्स हैं वो मूव करते हैं, व्हीकल्स रन करते हैं, रोड में जो व्हीकल्स होते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी. और कुकिंग का एग्जांपल तो आपने देखा ही होगा, घर में आपका जो खाना पकता है जस्ट बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी. ओके, तो हीट एनर्जी इज यूज्ड इन कुकिंग, राइट, with the help of fuel, and with the help of fuel it is used in running the vehicles and moving the engines. So let's learn about the light energy. We can see everything around us due to presence of light. And now think about it. अगर सूरज ना होता तो, अगर सन नहीं होता बेटा, तो क्या होता? तो क्या आप अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते? हमेशा नाइट ही होती. हाँ, दैट इज़ अनदर थिंग, मैन मेड सोर्सेस हमने बनाए हैं, बट मैं एक वैसी नॉर्मली एक बात बता रही हूँ आपको कि लाइक अगर लाइट एनर्जी नहीं होती तो आप किसी भी चीज़ को क्या देख पाते? नहीं, नॉट पॉसिबल. अगर मैं इस रूम में अंधेरा कर दूं तो अभी तो खैर सन की लाइट भी है, इट्स अ डे टाइम, इट्स अ मॉर्निंग टाइम, तो इजीली सन की लाइट है तो इजीली हमको सब चीज़ें विजिबल होंगी. पर अगर आप रात को एक रूम में अंधेरा कर दो, राइट, तो क्या आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते? नहीं देख पाते. इट मीन्स यू कैन सी एवरीथिंग अराउंड अस जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट. आप किसी भी चीज़ को कैसे देख पाते हो बेटा? क्योंकि सनलाइट क्या पड़ती है, सनलाइट या फिर कोई भी लाइट जो होती है घर में, आपकी जो मैनमेड लाइट है, वो आपकी जो आर्टिफिशियल लाइट है, वो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तब आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. जब वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, आपकी आइज तक पहुंचती है, तब आप उस लाइट को इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो.
राइट। सिमिलरली जो लैम्प्स होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, ये भी आपके होम्स में यूज होती है मैन मेड सोर्सेज के रूप में, लाइट एनर्जी के रूप में, राइट। सो यू कैन सी सन, वन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड a bulb is a man-made source of light. Okay, both are helpful in seeing the object around us. Okay, next is sound energy. और साउंड एनर्जी का एग्जाम्पल ये है कि मैं वीडियो में जो बोल रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड एनर्जी, राइट। सो व्हाट डज साउंड एनर्जी डूज? साउंड is the form of energy that produces a sensation in our ear. हमारे कानों में सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, हम सुन पाते हैं, राइट। ये जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड एनर्जी। वी कैन प्रोड्यूस साउंड बाय बैंगिंग, क्लैपिंग। आप क्लैप करेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको क्लैप करके दिखाती हूँ, राइट। वेट अ मिनट बेटा, दिस इज व्हाट आई वांट टू से यू, राइट। तो क्लैपिंग ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड। स्क्रैचिंग, कोई चीज स्क्रैच करने से क्या होगा? साउंड आएगी, राइट। कुछ ब्लोइंग, अगर आप हवा को ब्लो करोगे, राइट, एयर को ब्लो करोगे, आप ब्लो आउट करोगे, अपनी जो ब्रीथ आउट करोगे, तो ब्लो करते हुए क्या होती है? आवाज आती है ना, राइट। शेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक मैं इस ऑब्जेक्ट को शेक कर रही हूँ, तो इट इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड, राइट। थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, इट्स वेरी इजी। आप अपने जो रेनी सीजन है वो उसमें इजीली आप थंडरिंग की साउंड आपको इजीली सुनने को मिल जाती है। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ साउंड एनर्जी। लाउड स्पीकर, जैसे कि मैंने आपको सिंबल दिखाया है, लाउड स्पीकर से आप शादियों में, किसी भी फंक्शन में आपको इजीली लाउड स्पीकर्स की आवाज़ सुनने को मिल जाती है। टेलीविज़न, okay, radio, these all are using the sound energy. Okay, now electrical energy, जैसे कि आपके घरों में, सबके घर में लाइट्स हैं, जैसे कि ये लाइट आपको दिख रही होगी, राइट। सो दिस इज लाइट एनर्जी दैट मेकिंग द बल्ब टू this is electrical energy that making the bulb to give the light energy. Here is the conversion of like electrical energy to light energy with the help of bulb, right? So this is a electrical energy that converting into a light energy. So this is a bulb, this is a bulb, this is a fan. It will move with the help of electrical energy, right? So इट इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन पावर प्लांट्स। कहाँ प्रोड्यूस होती है? पावर प्लांट से प्रोड्यूस होती है, विच इज़ देन सप्लाइड टू योर होम। मैं आपको पावर प्लांट भी दिखाऊंगी, दैट इज़ हाइड्रो पावर प्लांट। ऑफकोर्स आपकी जो है लाइट एनर्जी वो कहाँ प्रोड्यूस होती है? हाइड्रो पावर प्लांट में प्रोड्यूस होती है। लाइक आपके जो डैम्स होते हैं वहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोड्यूस होती है। तो उसका मैं आपको एक एनिमेटेड जिफ दिखाऊंगी जिसमें आपको सारा हाइड्रो पावर शो होगा, right? So this energy reaches as a electrical energy. So electrical energy is used for working of computer. तो सामने आपको कंप्यूटर दिख रहा है, just because of electrical energy it is working. Okay? टेलीविज़न, आपके घर में सबके टेलीविज़न है। टेलीविज़न बिना लाइट के चलता है क्या? किसी के घर में बिना लाइट के चलता होगा क्या पता? हाँ, इन्वर्टर की हेल्प से चलता होगा, बट इट इज़ बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसमें, दैट्स वाई वो चल रहा है। अगर इन्वर्टर में बैटरी नहीं होगी और उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो वो भी नहीं चलेगा बेटा, राइट। फैन का मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है। मैं आप बटन ऑन करूँगी, तो जैसे ही मैं बटन ऑन करूँगी तो ये आपका ये फैन रन हो जाएगा, राइट। सो अभी मुझे ठंड लग रही है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, बिकॉज इट्स विंटर सीजन, राइट। सो स्टूडेंट, एंड दिस रनिंग पिक्चर इज ऑल्सो आई एम गिविंग यू, okay, TV is also running in front of you, and other electrical, so many other electrical gadgets in your home, like microwave, like oven, आपका water heater, so many things are there, water geyser, so many electrical objects you are using at your home. Okay, so this is the use of electrical energy.
विंड एनर्जी। बेटा मैंने आपको विंड मिल दिखा रखी है, इसमें आप देख रहे हैं कि विंड मिल क्या होता है, जहाँ कोस्टल एरियाज होते हैं तो वहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती है, तो उन हवाओं का यूज़ करते हैं, वहाँ पे विंड, बड़ी बड़ी विंड मिल लगती है। और विंड मिल क्या होता है, जैसे हवा चलेगी तो क्या होगा, ये जो आपके उसके ये जो उसकी स्लाइड्स हैं ये घूमेंगी, राइट, उसके पंख जो है फैन के जो ये हैं ये घूमेंगे, और जब ये घूमेंगे तो क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, राइट। द एनर्जी ऑफ विंड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय विंड मिल्स। ओके, उसके साफ्ट है, ये 3 साफ्ट है, इसमें तीनों साफ्ट इसके क्या करेंगे, घूमेंगे और आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको ये वायरिंग दिख रही होगी, ये सब यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें कनेक्टेड होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जनरेटर होंगे, तो वहाँ पे जनरेट होगी साथ में इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इन वायर्स के थ्रू आपके घरों तक पहुँचती है। तो दीज आर मोर यूजफुल इन कोस्टल एरियाज ओनली। अब जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे विंड मिल का इतना अच्छा यूज़ नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि इतनी हवाएं नहीं चलती यहाँ पे, पर कोस्टल एरियाज़ में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो कोस्टल एरिया में ही आपको गुजरात, यहाँ पे विंड पावर एनर्जी का यूज़ देखा होगा आपने, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, राइट, वहाँ पे विंड पावर का यूज़ होता है। लाइक विंड पावर के यूज़ से आप चक्की भी होती है, जैसे आटा वगैरह, धान वगैरह, ये चीज़ें पीसने के लिए, राइट, उन चीज़ों का काम भी करती हैं। Now let's learn about the solar energy. Okay, so solar energy, it is the energy of the sun which is trapped with the help of solar panel. ये क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, सन की एनर्जी है जो कि आपके सोलर पैनल्स, ये आपका सोलर पैनल आपको दिख रहा होगा, सन की हीट आपके सोलर पैनल में स्टोर होगी, और यहाँ पे ये जो सोलर पैनल में जब स्टोर होगी तो फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे ये मेन पैनल में आ जाएगी, यहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के थ्रू, और ये आपका आगे बढ़ जाएगा। और घर के अंदर भी मान लो चक्की लगी हुई है तो आटा वगैरह पीसने के लिए भी ये काम आ जाएगा। अगर किसी के घर में ही आपका इलेक्ट्रिकल सोलर पैनल लगा हुआ है तो पानी गर्म करने के, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के, सबके काम आता है, राइट। तो इस तरीके से आपका सोलर पावर का यूज़ होता है। Is it clear to everyone? So it is used for cooking food, electricity, heating water, so many things it can be used. Okay, so this is how solar panel works. Student, मैं आपको वर्कशीट में भी दे दूँगी, आपको एक एक्टिविटी करनी है, सेकंड एक्टिविटी जो आपकी होगी, राइट, सेकंड एक्टिविटी आपकी बेस्ड होगी, आपको क्या करना है, आपको नेचुरल तो नहीं, पर आप एक काम करेंगे, जो कार्डबोर्ड होता है उसकी हेल्प से, जो लाइक थर्माकोल होता है, उसकी हेल्प से एक आप हाउस बनाएंगे, सोलर हाउस, राइट। वहाँ पे आप सोलर हीटर शो करेंगे, उसके रूफ पे आप सोलर हीटर ऐसे ही शो करेंगे, सन भी आपको शो करना है। तो इस तरीके का ही, जैसा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, इस तरीके का ही आपको एक सोलर एनर्जी पावर का एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट आपका होगा एक्टिविटी बेस्ड, इसके आपको फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो इसके लिए मैं आपको एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम देती हूँ, राइट। 2 वीक्स का टाइम है, 2 वीक्स में आप इसे कभी भी सबमिट कर सकते हैं, और सबको इसको सबमिट करना है, इसको आपको पूरे मार्क्स इसके ही मिलेंगे फाइनल। ये आपका प्रोजेक्ट है, ये सबको बनाना है, और ये डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। लाइक आपको बताना है कि कैसे कैसे काम होता है, ये आपको शो करना है। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक अ सोलर पैनल मॉडल। ओके, मॉडल ऑफ सोलर पैनल। ओके, सो यू हैव टू डू दिस। अब नाउ ये दिस इज़ योर क्रिएटिविटी, आप कैसे इसको बनाते हैं, इसको आप मोर इफ़ेक्टिव भी बना सकते हैं, सोलर पैनल का यूज़ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप इसको कितना क्रिएटिव बनाते हैं, क्रिएटिव कितना हो आप वो देखेंगे, राइट। आपको मॉडल बनाना है, राइट। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वाटर एनर्जी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं आपको इलेक्ट्रिकल जनरेटर भी दिखाऊंगी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। सो सिंस अर्लियर टाइम्स मैन इज यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब
बहुत पहले समय से ही मैन क्या कर रहा है, इसका यूज़ कर रहा है। लाइक पानी को एक हाइट में इकट्ठा किया जाता है और फिर वहाँ से नीचे छोड़ा जाता है। कैन यू सी दिस इज़ अ डैम। और यहाँ से जब पानी नीचे छोड़ा जाता है तो ये साफ्ट होते हैं, यहाँ पे ये सब टरबाइन होती है, टरबाइन घूमेगी, टरबाइन जितनी तेज़ी से घूमेगी, यहाँ पे जनरेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ट्रांसफार्मर में वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होकर मैकेनिकल एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी फिर क्या हो जाएगी आपके जो ये इलेक्ट्रिकल लाइंस के थ्रू आपके घरों तक ऐसे इस तरीके से पहुंचती है। तो कैन यू सी दिस, दिस इज अ वाटर एनर्जी और पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पावर प्लांट ऑल्सो, you can also see. This is your electricity power generator. Okay, so this is how potential energy is converted into electrical energy. Okay, it means you can also water energy converted into electrical energy. Okay, so thank you student. We are complete up with this topic today about the different types of energy we gone through in our daily life, right? And now you have some for you some instruction are there for COVID-19 appropriate behavior. Student, you have to wear mask, follow physical distancing, maintain hand hygiene, you have to wear mask properly, stay at least 6 feet from others, wash your hand frequently, always with soap and water for at least 20 seconds. Remember, do not touch your face. Do not share food and drinks with others. So student, this is what you have to follow. Okay, everything is open, but you have to be careful by your side and you have to fight against the COVID-19. Okay, so thank you. Wear mask, follow physical distancing, maintain hygiene, and I will continue with my next video on my next class. Okay.